Hello everyone, a warm welcome to all of you. I am Nandita Nangia from CSNSR and today we are here to talk about that whether CA professional degree is equivalent to bachelor's degree or master degree. For that, I heartily welcome CIP Vivek Khurana sir. Thank you so much sir for giving your valuable time to us. Before Vivek sir start his deliberation, I request you all to please subscribe our YouTube channel and also press the bell icon so that you will receive all the notifications about our new videos and webinars. So, sir, there is whether CA professional degree is to be considered as a bachelor's degree or master's degree for the PR process, and how can we consider it? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CA Sansar for once again inviting me on your platform. And your question is very, very important question because I have also received many messages, not even now, even from since long, I'm getting these kind of messages whether the CA professional degree is equivalent to the bachelor degree or the master degree, and always there are some fight कि bachelor क्यों है, master क्यों है, ये etc etc. But one thing I want to share with you, no need of any comparison because CA itself is a professional degree. वी आर नाइदर इट्स ए बैचलर द प्रोफेशनल कोई जरूरत ही नहीं है इसको कंपैरिजन करने की बिकॉज इट्स सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इट सेल्फ इज ए प्रोफेशनल डिग्री बट यस फॉर द पर्पस ऑफ पीआर इट्स रिक्वायर्ड कि they checked it whether it's equivalent to the bachelor or whether it's equivalent to the master or it's equivalent to the doctorate. So for PR process, because in some countries PR process is based on the numbers, because like your age factor, your education factor, and then your experience, it counts. तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आती है कि कुछ पॉइंट्स हमें मैटर्स करते हैं इफ इट्स कंसिडर एज द बैचलर डिग्री या द मास्टर डिग्री देन इट हैव सम इश्यूज बट यस इन इंडिया if you are going for the doctorate like phd करना चाह रहे हो after doing ca then in many universities they consider chartered accountant as the master degree बट अगर आप पीआर प्रोसेस के लिए चेक करोगे लाइक कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड तो उनके पीआर प्रोसेस के लिए जो पॉइंट्स मिलते हैं तो उनकी कुछ एजेंसीज हैं they consider chartered accountant as the bachelor degree. Even कोई भी इवन इफ यू डिड एनी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री अगर कोई आपने करे तो चेक्ड कि वेदर इट्स इक्विवेलेंट टू देयर बैचलर डिग्री और नॉट तो वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं लाइक फॉर कनाडा तो कनाडा के लिए हमें एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ईसीए करवानी पड़ती है तो उसके लिए अलग अलग अथॉरिटीज हैं लाइक आईसीए आईसीईएस वेस जो एक लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं वेस और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें स्किल असेसमेंट तो उसके लिए सी ए एन जेड या फिर सी पी डबल ए आई पी ए तो अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग अथॉरिटीज हैं जो आपको आपका स्किल असेसमेंट करते हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया पर्पस के लिए इवन इवन इफ यू आर डूइंग सीपीए जो हमारा आईसीआई का एमओयू है थ्रू द सीपीए ऑस्ट्रेलिया तो उसमें भी दे वांट कि यू शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मींस आपके पास प्रोफेशनल सीए प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए एंड बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टू द ऑस्ट्रेलियन बैचलर डिग्री और अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है देन 5 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन कि मतलब सीए प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस या फिर सीए प्लस बैचलर डिग्री ये अगर आईसीआई एमओयू के थ्रू आप सीपीए ऑस्ट्रेलिया में अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम विद सीपीए कनाडा उसमें भी मींस सिर्फ सीए नहीं है मींस दे वांट member of ICA means CA professional degree and more than 2 years of post qualification experience and a recognized university degree means CA itself is not sufficient means Canada भी they want कि आपका CA plus 2 year experience and bachelor degree या 5 years experience आयरलैंड में भी अगर आपको मेंबर ऑफ आईसीआई है एंड ए बैचलर डिग्री और 5 ईयर का एक्सपीरियंस उसमें भी दे डजंट कंसीडर ओनली सीए एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो चाहे ऑस्ट्रेलिया है कनाडा है आयरलैंड है इफ यू आर डूइंग एमओयू जो आप इफ यू आर डूइंग सीपीए थ्रू द आईसीआई एमओयू चाहे सीपीए ऑस्ट्रेलिया है कनाडा है आयरलैंड है तो उसमें भी दे वांट
कि सीए के साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मींस सीए को वो कंसीडर नहीं कर रहे सिर्फ आपके एज ए बैचलर डिग्री, उसके अलावा भी दे आर डिमांडिंग फॉर दैट। एंड इवन जो मैंने अभी आपको बताया, जब आप स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट ये सीपीए के लिए दे आर आस्किंग द पेपर्स आल्सो। तो उसके लिए जो अलग अलग अथॉरिटीज हैं उसके थ्रू आपको असेसमेंट करवानी पड़ती है, आपकी स्किल असेसमेंट, कि वेदर जो आपने यहाँ पे चाहे बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इट्स इक्वलेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने यहाँ से बैचलर डिग्री करी है किसी यूनिवर्सिटी से, बट दे कंसिडर इट कि वेदर इट्स इक्वलेंट और नॉट, वो चेक करते हैं। तो इसके लिए अथॉरिटीज हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में जो आपका स्किल इंडिपेंडेंट वीजा जो पॉइंट बेस्ड है, उसमें सब क्लॉज 189 में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप उसमें बैचलर हैं या मास्टर हैं, उसमें सेम पॉइंट्स हैं। बट यस, अगर डॉक्टरेट है, पीएचडी है, तो उसमें कुछ डिफरेंसेस है। एंड देन कनाडा के लिए, कनाडा के लिए आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट जो ईसी है, दैट्स मैंडेटरी। तो ईसीए पीआर प्रोसेस के लिए, अगर आप इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, तो आपको ईसीए इज मैंडेटरी एंड फ्रॉम ए डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो कनाडा ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट कर रखा है कि दैट दे कैन कंसीडर, कि आपको दे विल चेक कि वेदर इट्स इक्वलेंट टू कैनेडियन बैचलर डिग्री और द मास्टर डिग्री। तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ईसीए करते हैं, लाइक आईसीएएस, आईसीईएस, आईक्यूएएस एंड देन डब्ल्यूईएस, जो बहुत फेमस है। मोस्टली पीपल गो विद द डब्ल्यूईएस, जिसको वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस कहते हैं। लोग कहते हैं वेस्ट करवा लिया, तो दैट्स नॉट वेस्ट, दैट्स ईसीए, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो जो वेस्ट है उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको आईसीआई से ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ेगी, या फिर कोर्सपोंडिंग, जहां से आपने बैचलर करी है कोर्सपोंडिंग यूनिवर्सिटी से आपको ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ेगी। देन यू हैव टू सेंड टू द जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वेस्ट है, आईसीएस है, तो देन दे विल आपको बताएंगे वेदर इट्स इक्वलेंट टू द बैचलर और वेदर इट्स टू द मास्टर। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट मिलेंगे। और इसके लिए भी आपको पैसे लगते हैं, अराउंड $300 है। एंड दिस इज वैलिड फॉर 5 years। एंड देन जो हम उसका हम मोस्टली वीडियोस बनाते हैं रिगार्डिंग द कनाडा का जो ड्रॉज निकलते हैं सीआरएस सिस्टम या एक्सप्रेस एंट्री बेसिस पे, उसमें भी आपकी एजुकेशन के बेसिस पे पॉइंट है। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, जो मैंने आपको बताया सीए को दे विल कंसीडर एज द बैचलर डिग्री, तो उसके आपके पॉइंट है विदाउट स्पॉइल्स 120। और अगर मास्टर डिग्री है आपकी, तो 135। सी द डिफरेंस, 15 पॉइंट का डिफरेंस है सीआरएस स्कोर में। तो अगर हमारी डिग्री को मास्टर डिग्री कंसीडर करेंगे तो हमें 15 पॉइंट्स का बेनिफिट होगा। 15 पॉइंट्स में तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं पॉइंट्स में। इन सीआरएस स्कोर में 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंट होता है। और अगर इफ यू आर ए सीए, और अगर आल्सो इफ यू आर ए बैचलर डिग्री, तो उसको हम कंसीडर करते हैं, जो कनाडा में कंसीडर करते हैं, डबल बैचलर डिग्री। अगर इफ एनी पर्सन हु इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई सीए है और साथ के साथ उसके पास बैचलर डिग्री भी है, देन इट्स कंसीडर डबल बैचलर डिग्री। तो उसके अलग पॉइंट है 128। ये विदाउट स्पाउस में मैं बता रहा हूँ आपको, 128 पॉइंट है। तो इसमें भी 7 पॉइंट्स का डिफरेंट है। तो और अगर विद स्पाउस जा रहे हो तो बैचलर डिग्री के 112 पॉइंट्स हैं, और डबल बैचलर डिग्री के 119 पॉइंट है, और मास्टर डिग्री के 126 पॉइंट है। तो 7-8 पॉइंट का जो डिफरेंस है, इट क्रिएट्स, मतलब काफी सारे उसमें इश्यूज आ जाते हैं। 1-2 पॉइंट्स में ही लोगों की पीआर रह जाती है। तो दिस इज रिगार्डिंग, इवन आई टोल्ड यू ना कि इन इंडिया मैनी यूनिवर्सिटीज, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो कंसिडर करती है सीए को एज द मास्टर मास्टर डिग्री। एंड दे अलाउड अस, मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउ करती हैं कि दे कैन एनरोल एज द पीएचडी, जो डॉक्टरेट है आपकी, उसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हैं, और वो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलाउ कर देते हैं। बट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल लेवल, वो आपको सिर्फ बैचलर डिग्री ही कंसीडर करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल्स ही दे दिए। वो पीआर प्रोसेस तो छोड़िए, इवन जहां पे आपका आईसीआई का एमओयू है, आईसीआई के एमओयू के अंदर भी वो खाली ओनली सीए डिग्री को कंसीडर नहीं कर रहे। दे वांट सीए प्लस बैचलर डिग्री, या फिर सीए प्लस बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर बैचलर डिग्री नहीं है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो उसमें भी वो डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ सीए नहीं चाहिए, उसके साथ अलावा भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग द वेदर CA professional degree is equivalent to the bachelor degree or the master degree. Again, I am saying no need of any comparison, but yes, for the purpose of PR,
हमारे हाथ में नहीं है, हमें कंसीडर करना पड़ता है, एंड दीज टू बी डन बाय द इंटरनेशनल एजेंसीज, जो मैंने बताया डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग कंट्री, कनाडा का अलग है सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, यूके का अलग है, यूएस का अलग है, तो मोस्टली they consider like the bachelor degree. So this is regarding the answer. Yes, I also received many questions, इसके ऊपर काफी questions आते हैं, so that's why Nandita ji has asked for a video. So this is the answer of your question, Nandita ji. So if you have any further query, we can discuss on that. Thank you so much, sir, for such information, and I also thank to our audience to join us. And I also like to request you all that please like the video, share it with your maximum friends so they can also get the benefit through it. And always your doubts are always welcome. So please, if you have any kind of doubt, please mention it on the comment section. Thank you very much. And even as Nandita ji said, if you have any further query, you can write it into the comment box whenever you have time. So we'll try to answer on that. So till then, bye bye. Take care. Thank you.